Good morning, students. Welcome to your EVS class. So, students, in today's EVS class, we are going to discuss the chapter number 9 from your EVS textbook. The title of this chapter is Days to Celebrate. So, kids, in this chapter, we are going to discuss the festivals that we celebrate in our country, that is in India. The festivals which are being celebrated in India, we are going to discuss about them in this chapter. So in India there are basically two types of festivals which are being celebrated. These two types of festivals which we celebrate in India are national festivals and religious festivals. So we are going to discuss these two types. So basically national festivals are those festivals in which we take pride to celebrate, है ना. These festivals are related to the nationalism. जैसे in India there are three national festivals which we celebrate. Those are Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती. तो हम national festivals जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय उत्सव. उनको सेलिब्रेट करना मीन्स एक तरह का प्राउड फील करना, इसलिए हम वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड विद दी रिलीजन रिचुअल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स किससे रिलेटेड होते हैं, आपके रिलीजियस रिचुअल्स से रिलेटेड होते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल नाउ. आई विल रीड द चैप्टर फर्स्ट. India is also known as land of many festivals. So in our country India we celebrate lot many festivals. Yes or no? Yes. Like we have Ganesh Chaturthi, we have Diwali, Raksha Bandhan. So we have lots of festivals. That's why our country is known as land of many festivals. All of us love to celebrate festivals and functions. Yes, we all love to celebrate festivals and functions. We all like to have that when we celebrate the festival we get a holiday, then we shop for the festivals, we wear new clothes, we go and visit our guests, है ना, or some guests come to visit us on the occasion of the festivals. That's why we all like to celebrate the festivals and functions. We celebrate functions like birthdays, weddings एंड एनिवर्सरीज विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. हम कौन से फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं जनरली हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज या वेडिंग सेलिब्रेट करते हैं, है ना. और ये सब फंक्शंस हम किन के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट ऑल दिस फंक्शंस विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उन लोगों के साथ हम ये सारे फेस्टिवल्स ये सारे फंक्शंस सेलिब्रेट करते हैं. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वन बर्थडे पार्टी. वन गर्ल इज़ हैविंग द बर्थडे एंड ऑल हर फ्रेंड आर विशिंग हर हैप्पी बर्थडे ऑन हर बर्थडे. इन दिस सेकेंड पिक्चर देयर इज़ सम वेडिंग हैपनिंग, है ना. देयर इज़ अ ब्राइड and there is a groom and all the relatives are blessing them. उनको शादी में उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे उनके पेरेंट्स हो गए, उनके बाकी रिश्तेदार हो गए, लाइक दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट. A festival is an event which is usually celebrated by a community as a local or national event. So what is festival? So festival is an event which is usually celebrated by the community as a local or national event. This means festival is a kind of a event or the function. Festival क्या होता है, एक इवेंट होता है जिसमें हमें वहाँ के लोग, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग रीजन के लोग वहाँ पे मिलके वो सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होता है, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर रीजन और आपकी लोकेलिटी, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के बेसिस पे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं. जैसे केरला साइड में पोंगल, विशु, ओणम ऐसे वाले फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. इफ़ यू गो टू दी पंजाब देन देर आर डिफरेंट फेस्टिवल्स लाइक बैसाखी, है ना, लोहड़ी. तो ये डिपेंडिंग ऑन योर रीजन, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेलिटी, द फेस्टिवल्स विल बी डिफरेंट. एंड in these festivals people from your community come together and they celebrate these festivals together. Next, festivals are two types. I told you there are two types of festivals. First one is national festivals and the religious festival. National festival मतलब
राष्ट्रीय उत्सव जिससे ये पूरा नेशन के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना इज़ वन ऑफ द प्राउड थिंग. एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स आर जनरली रिलेटेड टू योर रिलीजियस रिचुअल्स. आपके रिलीजन से रिलेटेड होते हैं जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. जैसे हिंदूज़ के फेस्टिवल्स अलग होंगे, मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स अलग होंगे. क्रिश्चियंस हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, लाइक क्रिश्चियंस सेलिब्रेट Christmas, Good Friday, Easter Day, and Muslims celebrates Muharram, Bakri Eid, Ramzan Eid, and Hindus festivals are like Diwali, Dashera, like that. So religious festivals are different for different religions, but the national festivals are same for all the people who live in वन कंट्री. जैसे हम सारे इंडिया में रहते हैं तो हमारे सब के लिए नेशनल फेस्टिवल सेम रहेंगे. इन इंडिया वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स. दोज आर गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे. तो ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन यू हैव टू सेलिब्रेट दिस नेशनल फेस्टिवल्स. वी सेलिब्रेट सम नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. ये सारे कौन से फेस्टिवल्स हैं? इंडिपेंडेंस डे. व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे स्टूडेंट्स, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. Why do we celebrate Independence Day on 15th August? Because in 1947 on the day of 15th August we got the independence from Britishers. That's why we celebrate Independence Day on the 15th August. जैसे 1947 में 15th August के दिन हमें ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी से हमें आज़ादी मिली थी. हमें क्या मिली थी? आज़ादी. इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड नाउ दिस 15th August डे हैज़ बिकम द नेशनल फेस्टिवल डे बिकॉज वी कॉल द 15th August एज इंडिपेंडेंस डे. वो हमारे लिए एक प्राउड करने की वजह है. 15 अगस्त वाले दिन हमें प्राउड फील होता है कि हमने ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकाल बाहर किया और हमने हमारी आज़ादी वापस पाई है उनसे. इसलिए ये हमारे लिए एक अभिमान की, गर्व करने की वजह बनती है. Then Republic Day. When do we celebrate Republic Day, kids? We celebrate Republic Day on 26th of January. So the Republic Day, why do we celebrate Republic Day? We all celebrate Republic Day because on the day of 26th January the Constitution of India was implemented in the Parliament. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो तब से लागू हो गया था हमारे भारत देश में. एंड वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान था, उसके रचयिता कौन थे हमारे संविधान के? यस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द पर्सन हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हमारे इंडिया का संविधान उस दिन से लागू हो गया 26 जनवरी के दिन से. इसलिए हम उस दिन को रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं. ऑल्सो वी सेलिब्रेट गांधी जयंती बिकॉज इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2nd October. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन द 2nd October. Mahatma Gandhi is our national leader and we call him as a nation's father. महात्मा गांधी जी को हम अपने भारत देश के बहुत ही एक महान व्यक्ति के तौर पर देखते हैं. इसीलिए हम उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हर साल गांधी जयंती के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं और उसको हमने नेशनल फेस्टिवल का भी रूप दिया है. And we also celebrate some festivals like Diwali, Holi, Eid, Christmas as religious festivals. So ये सारे जो festivals है, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं क्योंकि इनका बेस किसी न किसी रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए इनको रिलीजियस फेस्टिवल्स बोलते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस नेशनल फेस्टिवल्स इन डिटेल. First national festival is Independence Day. On 15th August 1947 our country got independence. मैंने बताया था ना आपको कि 15th August 1947 में हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर्स से. India became a
फ्री कंट्री, तब से हम एक आज़ाद देश के तौर पर जाने माने बन गए। उसके पहले तो हम गुलामी में थे। बिफोर दैट वी वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द Britishers. Before that we were not represented as the independent country to the whole world. After 15th August 1947 we became independent and a free country. We celebrate it as our Independence Day. That's why we celebrate this day of 15th August as the Independence Day. So kids, remember, whenever somebody asks you why do we celebrate 15th August as the Independence Day, you have to give this answer. On 15th August 1947, our country got independence. India became a free country. That is why we celebrate Independence Day on 15th August. Okay kids? On this day every year, the Honorable Prime Minister of our country hoists the national flag at the Red Fort in New Delhi. सो ये जो नेशनल फेस्टिवल है वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे? 15th अगस्त हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो एवरीवेयर वी डू द फ्लैग होइस्टिंग, बट मेन इवेंट ऑफ दिस नेशनल फेस्टिवल इज़ व्हाट? ऑन दिस डे एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही गोज़ टू रेड फोर्ट. वेयर इज़ द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट इज़ इन द दिल्ली, एंड over there on Red Fort he hoists the national flag of our country. वहाँ पे जाके जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, व्हाट वी कॉल टू आवर नेशनल फ्लैग, इट इज़ ट्राई कलर फ्लैग, और हम उसको तिरंगा बोलते हैं. तो वो वहाँ पे रेड फोर्ट पे हमारा तिरंगा लहरा कर हमारा जो ये 15th अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिन है, वो सेलिब्रेट करते हैं. He addresses the nation and gives a message to the people to motivate and encourage them to be proud of their country. So वहाँ पे क्या होता है? After the flag hosting, the Prime Minister of India gives messages to the people of India and he tries to motivate us and encourage us so that we should be proud of being इंडियन. वहाँ पे जब हमारे प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं तब वो क्या करते हैं? उसके बाद वो एक जनता के लिए एक संदेश देते हैं, जिस संदेश को सुन के हम लोग प्रेरित हो जाते हैं, एनकरेज हो जाते हैं, और हम हमारे कंट्री को और हम भारतीय होने पर अपने आप पर गर्व कर सके. ऐसा वो मैसेज होता है, ऐसा वो संदेश होता है. Next, Republic Day. The next national festival that we celebrate is the Republic Day. 26th January is celebrated as Republic Day. On this day in the year 1950, India got a constitution. मैंने बताया था ना 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते? क्योंकि इस दिन पर इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था इंडिया में. दैट इज़ वाई दिस इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, विच इज़ अ सेट ऑफ आवर रूल्स फॉर स्मूथ एंड लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है. तो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स फॉर द स्मूथ एंड लॉफुल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. जैसे हर एक कंट्री के कुछ कुछ अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने लॉज होते हैं. किस लिए बनाते हैं ये रूल्स एंड लॉज? ताकि हर एक कंट्री में एक तरह का डिसिप्लिन हो, यूनिटी हो, लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है. अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ सही है करने के लिए, कौन सी चीज़ गलत है, तो लोगों में आपस में बहुत कन्फ्यूजन होगा और हमारा जो कंट्री का जो कारोबार है वो ठीक से नहीं चल पाएगा. दैट इज़ वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन आवर कंट्री इन अ स्मूथ एंड इन अ गुड मैनर. एंड
and what helps our country to run in a smooth and good manner? This constitution helps. And constitution में क्या होता है? constitution में rules होते हैं, laws होते हैं कि being an citizen of India, what we supposed to do, what we supposed to follow, है ना, हमारे duties क्या है towards the country, ये सारी चीज़ें हमें constitution से पता चलती है. अभी आप बच्चे बहुत छोटे हो कि पता चले कि आपके रूल्स क्या है कंट्री से रिलेटेड, या आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, आपके क्या क्या कर्तव्य है हमारे कंट्री से रिलेटेड. तो आप थोड़े से बड़े हो जाओगे 5th 6th में, तब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी. On this day, all public places, offices and schools hoist the national flag. इस दिन पर क्या करते हैं? How do we celebrate the रिपब्लिक डे? इस दिन भी हर स्कूल्स, कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग है वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं वहाँ पे. ठीक है. At Rajpath in New Delhi, a parade is held in which President of our country takes the salute. So you all must have seen the 26th January का Republic Day का parade on the Republic Day's parade on the television, है ना? It's a very big event. So on 26th January, the venue is Rajpath in New Delhi. Rajpath जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे क्या होता है? There is a huge parade on this Rajpath, and where the president of our country takes the salute. वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो जो परेड होती है वो देखने के लिए. ठीक है. नाउ गांधी जयंती. वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती. गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट दिस ऑन द 2 अक्टूबर. On this day, Mahatma Gandhi was born. Why do we celebrate Gandhi Jayanti on 2 October? Because on this day, Mahatma Gandhi ji was born. He is known to us as गांधी जी और बापू जी. हम उन्हें क्या बुलाते हैं? हम गांधी जी को गांधी जी या बापू जी कह के बुलाते. He is also known as the father of the nation. गांधी जी को हम father of nation भी बुलाते हैं. On this day, the special prayers and meetings are held, especially at his samadhi at the Rajpath in New Delhi. So समाधि मतलब जहाँ पे लोग जो भी कोई व्यक्ति आफ्टर हिज डेथ उसकी कोई मेमोरी बनाते हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम समाधि बोलते हैं. तो महात्मा गांधी हैज़ हिज समाधि एट द राजपथ इन न्यू दिल्ली. तो वहाँ पे क्या करते हैं? ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती वहाँ पे स्पेशल प्रेयर्स होती है, फिर मीटिंग्स होते हैं, पीपल कम देयर एंड द लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री गो देयर एंड गिव टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम महात्मा गांधी जी समाधि. एंड वहाँ पे जाके वो उनको फूल चढ़ाते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं और उनके सामने प्रार्थना करते हैं. दे वांट टू सीक हिज ब्लेसिंग्स सो दैट आवर कंट्री शुड बी इन अ गुड कंडीशन एंड वी शुड प्रोग्रेस इन द फ्यूचर लाइक दैट. ओके किड्स, so we have discussed all the national festivals. In the next class we will discuss the religious festival. Till then, thank you. Have a good day.